And let's see. Here we have to find the equivalent resistance, right? So student, you can see here 8, 16, 16, 16, 16, this 16, this 16, parallel. What will be the equivalent resistance? 16 parallel 16 is 8, na students? Right? Yes, sir. Then 8 parallel with 8. Again, it will be 4, na? So this total will be 4. Is that clear to all? Yes, sir. And here 9 and 18. See here, 9 and 18 parallel. So what will be the equivalent resistance? 9 into 8, 9. Sorry, 1 minute. It will be how much? 18 into 9 by 18 plus 9. है कि नहीं? Yes, sir. 50. So 18 into 9 by 18 plus 9 is 27, na? So 9 3 is 27, so 3 6 ohm or not? So this is going to be 6 ohm, correct? Yes, sir. So then we can redraw the circuit. हम सर्किट को redraw कर सकते हैं. यहाँ पर equivalent resistance हो गया 4 ohm और यहाँ पर equivalent resistance हो गया 20 ohm, right? और यहाँ पर equivalent resistance कितना हो गया 6 ohm और यहाँ पर पहले से था 6 ohm. Is that clear to all? Yes, sir. 4 plus 20 कितना हो गया 24 ohm हो गया ना? It's 24 ohm, right? And 6 plus 6, that is 12 ohm ना? है कि नहीं? Students all getting ना? Yes, sir. Yes, sir. So 12, 24 और 12 दोनों को पैरेलल कर सकते हैं. 24 into 12 by 24 plus 12 कितना हो रहा है देखो? 24 into 12 divided by 24 plus 12 is 36 ना? 12 3 is 36 na? So that is 8 ohm. Understood? So what is the equivalent resistance? 8 ohm. Is that clear to all? Yes. देखो ऐसे नॉर्मल सीरीज रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताया था वो आप कर लोगे, बट कभी कभी क्या होता है मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा यहाँ पर. देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर हमने इस तरह से एक ब्रिज बनाया, ठीक है. लेट्स मैंने एक रेजिस्टेंस ऐसे बनाया और एक रेजिस्टेंस मैंने ऐसे बनाया और एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे बनाया और एक रेजिस्टेंस हमने ऐसे कनेक्ट करवा दिया, राइट. और बीच में हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया 9 ohm, this is 5 ohm, this is 4 ohm, this is 10 ohm, this is 8 ohm, right. और ये पॉइंट ए दे दिया हमने और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया, ठीक है. और क्वेश्चन में पूछा फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी. ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 6 ohm, 9 ohm, 12 ohm and 15 ohm. Just do this question. What is the equivalent resistance across AB? Just try it. Circuit makes some suddenly confusion. Which one is to be taken parallel? Which one is to be taken series? So what will happen? To solve such type of questions, you'll be getting some questions in class 10th level. That is a bridge is there, Whetstone bridge, right? Whetstone bridge, just understand the concept, right? You may get a question on that regard. So what Whetstone bridge says, this is a bridge, right? This is a bridge and let a ammeter is connected here. Actually, we connect a galvanometer which detect the small amount of current, right? If this is PR, this is QR, this is R, this is S, right now? 4 answer there. How to know that the bridge is balanced? Student, if here P by Q is equal to R by S, दो आर्म्स की रेशियो इसकी P by R, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना, P by R is equal to Q by S भी लिख सकते हैं कि नहीं? Any दो आर्म की आप ले लो, you take the ratio, then you can see. Let's see here, that is a Whetstone bridge. So if the arm ratio, you take P by Q is equal to R by S or P by R is equal to Q by S, if it is equal, then we say that bridge is balanced. Bridge is balanced, right? So bridge balance means no current flows through the galvanometer. When bridge is balanced, no current flows through the galvanometer. No current flows through the galvanometer. Understood na? So if no current flows, then we can remove that. Yes or no? If no current flows, then we can cut. If a branch is not going any current. Last class we have drawn a circuit like that, na? Open circuit. I told you if it is open circuit, then no current will flow. Yes or no? Yes, sir.
ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो P और Q दोनों सीरीज पे है, R और S दोनों दोनों सीरीज पे है। फिर यहाँ पर ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, P और Q को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा P प्लस Q, और फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या, R प्लस S, राइट ना। फिर हम दोनों को पैरेलल पे लगा देंगे। अंडरस्टूड दिस वन ऑल? सो चलो ये कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो ये मैं लिखा हूँ 5/4, 5/4 इज इक्वल टू 10/8। हो रहा है क्या? हो रहा है ना? हो रहा है क्या? यस सर। तो Yes, ब्रिज sir. बालांस का मतलब इसके थ्रू कुछ भी करंट नहीं जाएगा, 9 ओम के थ्रू नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस, राइट। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इट कैन बी रिमूव्ड। तो अभी ये रिमूव होने के बाद तो काम आसान हो गया ना। कितना हो गया ये 5+4 ऊपर में कितना हो गया, 5+4 कितना हो गया, 9 ओम ना, राइट। यस सर। Yes. और 10+8 नीचे में कितना हो गया, 18. 18 ओम, राइट। और ये 9 ओम और 18 ओम पैरेलल पे लगेगा ना। Yes, sir. तो आर ए यस सर। क्या करेंगे, 18 इंटू 9/18 प्लस 9। अभी अभी किया ना इस तरह की एक 27। Yes, sir. तो कितना हो गया, 6 ओम ना। Yes, sir. ऑल अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? Yes. ठीक है। तो इसके इस ये तो एक यस सर। तो इस तरह की और भी एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, जिसमें कभी कभी क्या है कि वो ब्रिज के फॉर्मेट पे ना देके ऐसे दिया होगा, राइट। क्वेश्चन को ऐसे दिया होगा। समझ पा रहा है ना आपको क्वेश्चन? तो वहां से तुरंत पकड़ लेना कि मान के चलो यहाँ पर 3 ओम लिखा है, यहाँ पर 6 ओम लिखा है, राइट। बीच में उसने कुछ भी दे दिया 2 ओम, राइट। और यहाँ पर लिख दिया है 12 ओम, राइट। और यहाँ पर लिख दिया है 24 ओम। तो उसने पूछा ए और बी के अक्रॉस में क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये भी एक ब्रिज की तरह है ना, राइट। Yes, sir. तो वहां पर दिमाग पे ये आ जाना चाहिए कि बेटा ये भी एक ब्रिज है, ठीक है। तो ब्रिज है मतलब ये 3/6, देखो यहाँ पर ऊपर में क्या कर दिया हमने 3/6, और यहाँ पर क्या है 12/24 है ना। 1/2। ये भी 1/2 हो रहा है और ये भी 1/2 हो रहा है, राइट। तो सेम है मतलब ये जो हमने लिए 2 ओम ये बीच में नहीं रहेगा, राइट। दिस 2 ओम विल नॉट बी देयर। रिमूव। तो अभी 3 और 6 दोनों सीरीज पे हो जाएगा पैरेलल, और 12+4 पैरेलल सीरीज। तो 3+6 कितना हो गया, 9 ना। 9. Yes. 3 ओम, ये 6 ओम। नीचे पे क्या करेंगे, प्रत्युषा सोहम गेटिंग और नॉट। Yes, sir. 12 ओम एंड दिस इज 24 ओम, राइट। तो अभी सीरीज पे हो जाएगा दोनों। तो कितना हो गया ऊपर में 6 So प्लस 9. ये दोनों मिला के हो गया 9 ओम, राइट। और नीचे पे कितना हो गया दोनों मिला के 36. Sir. 36 ओम। तो अभी 7.2 ohm. तो 36 पैरेलल 9, दैट मींस 36 into 9 divided by 36 plus 9, right? Yes or no? यस सर। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, राइट। यस सर। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस Yes, सर। sir. चलो और एक टाइप का क्वेश्चन देता हूँ इसके रिगार्डिंग, सेम वेस्टर्न ब्रिज के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो थोड़ा स्टूडेंट, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया उसने क्वेश्चन पे। जस्ट इट हैज मेड अ ट्रायंगल लाइक दिस। जस्ट आप क्वेश्चन को देखो, और यहाँ से ऐसे ले लिया एक, और यहाँ से ऐसे ले लिया एक, राइट। और यहाँ से एक पॉइंट रख दिया ए, और यहाँ से एक पॉइंट रख दिया बी, राइट। और ये जो सारे रेजिस्टेंस है ना 2 ओम दिया हुआ है, सारे 2 ओम है, ऑल आर 2 ओम, राइट। गेटिंग ना स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ पा रहे हो? तो उसने पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी। तो कैसे करेंगे यहाँ पर? लगता तो नहीं किसको सीरीज पे ले किसको पैरेलल पे। गेटिंग ना माय पॉइंट? यस। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, देखो ये जो आर्म है ना, ये जो ए बी है, तो थोड़ा ए को इस तरफ ले सकते हैं ना हम। कैन यू टेक द ए पॉइंट, मतलब इसको हटा के इस तरफ ले लिए। मतलब जो डायग्राम था उस डायग्राम को ऐसे ही रखो, जस्ट कीप द डायग्राम इन दैट वे। बस थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाओ कि ये जो बी को हमने हटा के ऐसे ले आए, राइट। और ये जो ए पॉइंट इस तरफ था, उस वायर को मैंने ए पॉइंट को पकड़ा, मान के चलो वो थ्रेड है, मैंने पकड़ा उठा के उस तरफ रख दिया, राइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा ना। समझ पे आ रहा है ना? Yes, sir. अभी क्वेश्चन आसान हो गया, अभी ब्रिज हो गया। अभी जो अंदर पे था, ये जो ए पॉइंट था, इसको मैंने पकड़ा और ऐसे ऊपर उठाया, फिर उस तरफ फैला दिया, राइट। लेफ्ट की तरफ में इस तरफ पे उसको डाल दिया, और ये बी पॉइंट को मैंने इस तरफ ले आया। कुछ गलत किया क्या? No, sir. तो अभी ये ब्रिज हो गया ना, 2/2 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, राइट। तो इट्स लाइक ब्रिज, इट्स लाइक बैलेंस ब्रिज, राइट। Yes, sir.
यस सर नो? Yes, sir. तो अगर ये बैलेंस्ड ब्रिज है तो फिर क्या हो गया, 2 सीरीज 2 सीरीज कितना हो गया, 4 पैरेलल 4 ना, Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes. 0.4. 2 + 2 हो गया और वो पैरेलल हो गया 2 + 2 मतलब 4 पैरेलल 4, 4 पैरेलल 4 मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 4 Yes. बाय 4 + 4 कितना हो गया, Yes, 60 sir. 2. 2 ओम हो गया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Yes, sir. ठीक है। चलिए, और एक चीज मैंने लास्ट क्लास पे बताया था, जस्ट सी हियर, मैंने क्यूब के बारे में बताया था लास्ट क्लास ऑफलाइन में, और ऐसे भी याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने ऐसा क्यूब लिया था, मैंने बोला था कि हर साइड पे कुछ कुछ रेजिस्टेंस है, राइट, एवरी साइड इज हैविंग सम रेजिस्टेंस, है ना, है कि नहीं? तो देखो हमने ये टर्म लिए थे और ये टर्म लिए थे, इस पॉइंट का नाम ए और बी दिए थे, राइट ना? तो क्या बताया था मैंने, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बी क्या लिया था मैंने, व्हाट डू यू टॉक अबाउट आर अक्रॉस बी, याद है? थोड़ा कॉपी देखो, याद आ रहा है कि नहीं? 3 लिए थे, आर 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 बाई 3, 3 लिए थे, आर 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 बाई 3 और बीच में आर बाई 6, याद आ रहा है ना? 5r/6 5 आर बाई 6 ये लिए थे ना हमने, अगर सबका रेजिस्टेंस आर है, एवरी साइड इज हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस, तो इक्वल रेजिस्टेंस क्या था, 5 आर बाई 6, करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रीडिंग ना? अच्छा, फिर मैं इस पे मैंने आपको और भी 2 चीज बताया था कि बेटा इस पे और 2 तरीके की डायग्राम हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था उस दिन क्लास में भी, एक अपोजिट डायगोनल हो सकता है, राइट, अपोजिट फेस डायगोनल, ये क्या है, ये अपोजिट डायगोनल है ना, ये क्या है, इज इट दिस इज अपोजिट डायगोनल, राइट, है ना? Yes, sir. बट अगर मैं अपोजिट फेस डायगोनल ले लूं, मतलब मैंने इसे क्यूब ले लिया, राइट, आई जस्ट टूक ए क्यूब, मुझे इसके बीच में ये फेस डायगोनल है ना बेटा, तो अपोजिट डायगोनल और फेस डायगोनल में फर्क समझते हो कि नहीं? स्टूडेंट्स गेटिंग ना, अपोजिट डायगोनल और फेस डायगोनल में फर्क समझ पे आ रहा है कि नहीं, बताओ थोड़ा मुझे, मतलब yes sir साइड का पीछे वाला हिस्सा और इसके सामने वाला हिस्सा अपोजिट फेस डायगोनल है ये, बट ये एकदम फेस डायगोनल है, सामने सामने, गेटिंग ना? Yes, sir. Yes. इस पॉइंट को ए ले लिए, इस पॉइंट को बी ले लिए, तो आर ए बी कुछ एक आएगा फिर जिसको याद रखेंगे। और भी एक चीज याद रखना है, क्या है क्यूब में, कि देखो थोड़ा, कोई भी 2 कंजिक्यूटिव साइड भी हम ले सकते हैं, गेटिंग ना, वी कैन टेक एनी 2 कंजिक्यूटिव साइड, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, राइट, दैट इज आर ए बी, क्या है वो, आर ए बी, समझ पे आ रहा है ना? थोड़ा ये डायग्राम बनाओ, दोनों डायग्राम थोड़ा बनाओ, जस्ट ड्रॉ द 2 डायग्राम्स। देखो यहाँ पर ये फेस डायगोनल है, तो फेस डायगोनल में जो रेजिस्टेंस होता है, जस्ट रिमेंबर दैट इज 3/4r, राइट, और ये जो है एनी वर्टिसेस एनी 2 कंजिक्यूटिव साइड्स में जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है 7r/12, समझ पे आया सबको? ऑल रिमेंबर स्टूडेंट? अपोजिट फेस डायगोनल में क्या होता है, बताओ थोड़ा, जस्ट से मी, स्टूडेंट अपोजिट फेस डायगोनल में क्या होता है, ये जो बताया हमने अभी, क्या होता है अपोजिट फेस डायगोनल में, 5r/6 ना, 5/6, sir. और फेस डायगोनल में 3/4. 3/4. और एनी साइड पे 7/12. 7/12. ये 3 आप याद रख सकते हो, Yes, Yes, sir. sir. देखिए 5r/6, दूसरा क्या है 3/4r, राइट, तीसरा क्या है 7r/12, ये तीनों आपको याद रखना होगा, याद रहेगा ना, राइट? Yes, sir. चलो, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया अभी, मतलब इस तरह की मैंने एक क्वेश्चन दिया, जस्ट इस तरह के आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चंस, जस्ट इस तरह से आसान होगा, आप एक काम करो, ऐसे एक क्यूब बनाओ, राइट, ऐसे एक क्यूब बनाओ,
ऐसे जोड़ो और इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी। स्टूडेंट्स ये सारे एक एक रेजिस्टेंस है, ऑल आर वन वन रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर, राइट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर। तो ये एक क्यूब का टॉप व्यू है ना, थोड़ा देखो, एक क्यूब को अगर ऊपर से देखेंगे ऐसा दिखेगा ना, Yes, sir. इमेजिन कर पा रहे हो सब? Yes, sir. क्यूब जैसा है ये वैसा ही है ना, है कि नहीं? मैं नाम दे देता हूँ, ये ए बी दे दिया नाम मैंने, इसको सी और डी दे दिया, इसका नाम एफ जी एच दे दिया। तो सारे पॉइंट्स का नाम आपको मिल गया ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. इज दैट विजिबल टू ऑल? सबको दिख रहा है ये? Yes. तो ये क्या है? ये क्यूब का टॉप व्यू है ना, इट इज द टॉप व्यू ऑफ ए क्यूब ना। Yes, sir. ठीक है, अगर मैंने आपको कोई भी चीज मतलब 2 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, अब मुझे बताओ ये फेस डायगोनल है या अपोजिट फेस डायगोनल है या 2 कंसेक्यूटिव साइड है। मैं 2 पॉइंट के नाम बताऊंगा, आप मुझे बताओ, ठीक है? जस्ट सेम आर ए बी जो है वो क्या होगा? फेस डायगोनल होगा, मतलब सारे रेजिस्टेंस आर है, ऑल एट सेम रेजिस्टेंस। तो आर ए बी मतलब नीचे का जो सरफेस है, मतलब समझ रहे हो ना स्टूडेंट? मैंने प्रेस कर दिया, मतलब एक क्यूब है, क्यूब को मैंने प्रेस कर दिया तो ऐसे दिखेगा ना क्यूब, राइट? Yes, sir. तो इट्स लाइक ए क्यूब, यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? Yes. ठीक है, तो जब आर ए बी की बात करता हूं तो आर ए बी किस कैटेगरी में आता है? अपोजिट फेस डायगोनल में आता है या फिर 2 कंसेक्यूटिव साइड पे आता है? देखो आर ए बी को समझने के लिए आप थोड़ा यहाँ पर देखो आर एच एफ भी वैसा ही है ना, ये ऊपर वाला 2 पॉइंट है, वो नीचे वाला 2 पॉइंट है क्यूब की, है कि नहीं? Yes, sir. तो मतलब ये क्या है? ये फेस डायगोनल है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. समझ पे आ रहा है Yes. क्या मैं बोलना चाहता हूँ? और वो ठीक उसी तरह आर सी डी भी उस तरह होगा ना, आर सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, देखो दिस इज सी डी पॉइंट भी ऐसा होगा ना, और दैट विल बी आल्सो इक्वल टू आर ई जी, है कि नहीं? ऊपर में ई जी है, गेटिंग ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. आप कोई भी पॉइंट को ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ए जी की बात करूं, मैंने आर ए जी की बात की, देखो ए पॉइंट और जी पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज जी पॉइंट। ये भी फेस डायगोनल है ना, सामने से देखेंगे तो ये अपोजिट फेस डायगोनल है ना, मतलब फेस डायगोनल है ना, अपोजिट नहीं है ना ये? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ए जी की बात कर रहा हूं मैं, ये ए पॉइंट और ये जी पॉइंट। और यहाँ पर डी और एच पॉइंट भी ले सकते हैं ना, आर डी एच पॉइंट। देखो डी एक क्यूब का, ये एक स्क्वायर की तरह दिखेगा ना जब हम सामने से देखेंगे, ये जो Yes, sir. इट विल लुक लाइक ए स्क्वायर और नॉट? ये वाला पार्ट इट विल लुक लाइक ए स्क्वायर, राइट? और मैं अपोजिट ले रहा हूँ, ये एच वाला पॉइंट है और ये डी वाला पॉइंट है। समझ पे आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर फेस डायगोनल, Yes. मैंने फेस डायगोनल का क्या बताया फॉर्मूला? 3r/4 ना, 3/4r ना। तो ये जितने भी फेस डायगोनल होगा उस सबका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 3/4। अंडरस्टूड ऑल? तो मतलब आपको अच्छा, तो मुझे बताओ कौन सी एनी 2 पॉइंट्स यू से मी जो कि अपोजिट फेस डायगोनल होगा? मैं बता देता हूं अपोजिट फेस डायगोनल। देखो थोड़ा, अगर मैं अपोजिट फेस डायगोनल की बात करूं तो आर नीचे ए है, बी नहीं ले पाएंगे लेकिन एफ को ले पाएंगे ना, आर ए एफ अपोजिट फेस डायगोनल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? देखो ए पॉइंट एफ पॉइंट अपोजिट फेस डायगोनल हो जाएगा ना। Yes, sir. और आर सी पॉइंट को अगर सी लूं, ये तो नहीं होगा, इसका ठीक पीछे क्या है? जी पॉइंट है ना, आर सी जी हो जाएगा ना, राइट? क्योंकि डी लूंगा तो वो फेस डायगोनल हो जाएगा, राइट? समझ पे आ रहा है मुझको, आपको मेरे पॉइंट? Yes, sir. अगर मैं Yes. आर एच, अगर मैं एच लूं, एच का कौन फेस डायगोनल होगा? एच ऊपर है तो नेक्स्ट का नीचे वाला पॉइंट बी लेना पड़ेगा, राइट? आर एच बी। समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. अगर एफ लिया तो एफ तो लिखे हैं हम, समझ पे आ रहा है? तो ये सारे क्या हो जाएगा? अपोजिट फेस डायगोनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपोजिट अपोजिट फेस डायगोनल का क्या फॉर्मूला? 5/6 राइट? 5/6, sir. तो आप डिटरमाइन कर लोगे। और एनी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स तो आपको मिल जाएगा, एनी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स। देखो मैं अगर यहाँ पर बोलूं आर ए सी तो दे आर ए कंसेक्यूटिव साइड ना। मैं अगर बोलूं आर सी बी तो वो कंसेक्यूटिव साइड है ना। अगर बोलूं आर बी डी, और यहाँ पर आर बी डी जो है आर जी एफ भी वही है ना, ये भी कंसेक्यूटिव है, ये भी कंसेक्यूटिव है, जी डी भी कंसेक्यूटिव है, एनी 2 दैट इज कंसेक्यूटिव साइड। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 7r/12 ना। 7r/12. Yes. तो आपको इस तरह की डायग्राम अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो आप बना पाओगे ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir.
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैंने आपको दे दिया कि बेटा ये जो R का वैल्यू है ना, दैट वैल्यू इज 12 ओम। कितना है R का वैल्यू? 12 12 ओम, राइट। तो मुझे बता सकता है कोई RAB क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RAB? उसी क्वेश्चन पे RAB का वैल्यू क्या होगा? उसने ऑप्शन में दिया हुआ है 9 ओम, ऑप्शन पे दिया हुआ है 12/5 ओम, ऑप्शन पे दिया हुआ है 8 ओम, ऑप्शन पे दिया हुआ है 11/3 ओम, राइट। कौन होगा, कोई बता सकता है? RAB मतलब 9 ओम। हाँ, RAB मतलब फेस डायगोनल है या अपोजिट डायगोनल है या साइड है? सर फेस डायग्राम। फेस Phase डायगोनल diagonal. का क्या फॉर्मूला है? 3/4R, राइट है कि नहीं? तो RAB मतलब क्या है? yes sir 3/4R। तो R कितना है स्टूडेंट्स? 12 ohm 12। तो कितना हो गया? 36/4 So that is 9 ohm. Understood? तो which option? Students understood ना? यस सर। yes अगर उस पे मैं बताऊं R फेस डायगोनल बताता हूं मैं, देखो अगर अपोजिट फेस डायगोनल मैंने बताया आपको, RAF बताया, तो RAF क्या हो जाएगा? देखो सर 5R/6, राइट। So write 5/6 into 12, right? तो 10 ओम हो जाएगा। अंडरस्टूड? 10 ओम। AF ये A पॉइंट है, ये F पॉइंट है। देखो ठीक से आराम से डायग्राम बनाओ, नोट्स को देखो दोबारा, राइट। अगर मैं RAH की बात करूं स्टूडेंट्स, एनी साइड, देखो ये RA है, ये H है, 7 ohm 7R/12, राइट। 7 ohm yes तो 7R/12, तो 7R कितना है? 12/12, कितना हो गया? 7 ओम ना। तो तुरंत इस Yes, तरह की डायग्राम आएगा तो आपको पहले क्या डिटरमाइन करना है कि वो अपोजिट फेस डायगोनल है या फेस डायगोनल है या नॉर्मल है, राइट। तो तभी आप फॉर्मूला डाल के निकाल दोगे ना जो भी दिया होगा। yes